ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੂਲ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਲੜਾਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੋ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲੜੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਐਜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਤੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ 17 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ
ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ कि वो ਜਿਹੜੇ काले कानून उन्होंने बनाए हैं वो वापस लें। किसान जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि सारे कानून वापस हो। ये कानून बनाए गए हैं किसानों के लिए। अगर किसान ही नहीं चाहते ये कानून, फिर आप फोर्स क्यों कर रहे हो? ये नीति फोर्स करने की, जैसे पहले उन्होंने नोटबंदी फोर्स की, जीएसटी फोर्स किया, अब ये चाहते हैं कि जो भी हम फैसला बनाए दफ्तरों में बैठ के बनाएं, हम जबरदस्ती लागू करें। ये डेमोक्रेटिक देश है। अगर किसान नहीं चाहते, आपने देखा कि सारे देश की सारी किसान जथेबंदी इकट्ठी हो गई हैं, पूरे देश में भारत बंद हुआ है, सारे देश के किसानों की यही आवाज है कि हम नहीं चाहते ये कानून, फिर ये क्यों रख रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। सी गल है कि हर जथेबंदी नूं, हर समाज के लोगों को हक है अपनी आवाज़ पीसफुली आवाज़ रखने की, पर जिवें रवैया बन गया सेंटर का सरकार का कि उन्हें कन्फरंट करना है, उन्होंने दबाना है। हुण डेमोक्रेसी थोड़ी दबाया जा सकता है। अपने देश के लोग है, देश के अन्नदाता है। जो देश नूं रोटी की लोड़ सी उदों तो आई किसान सी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके देश नूं बचाया। तो अज तुसीं गल नहीं सुन रहे। तो जिहड़ी माड़ी गल है कि जिहड़े देश की सेंटर सरकार अन्नदाता नूं एंटी नैशनल दसन लग गई है। जे तुसीं एंटी नैशनल दस रहे हो फिर तुसीं मीटिंग क्यों की इन्हां नाल? क्योंकि मीटिंग थोड़ी फेल हो गई, हुण तुसीं एंटी नैशनल बनाता। आ सेंटर की सरकार की कोशिश रही है, जिहड़े लोग सेंटर की सरकार की गल नहीं मानते, कोई भी देश का देशवासी सेंटर की सरकार की हुण पॉलिसी रह गई है, जिहड़े भी गल नहीं मनूगा, कोई पोलिटिकल पार्टी ना मन्ने या कोई सैक्शन ऑफ पार्टी ना लोग ना मनन, उन्होंने इक्को ही गल हुंदा प्रोजेक्ट कर लग जाते कि एंटी नैशनल है। आ देश के लोग एंटी नैशनल नहीं है, आ किसान एंटी नैशनल नहीं है। देश के लड़ाई देश नूं बचाउण वाले किसान है। आ वही पॉलिसी जिहड़ी कांग्रेस सरकार ने, तुसीं देखो अमन शांति भंग कराई सी, अज देखो पंजाब कितनी देर बाद अमन शांति वापस आई है। अज वही नीति ते हुण बीजेपी चल पई है, सेंट्रल सरकार चल पई है। किसानां दा अंदोलन किसान कर रहे लीड। हुण तुसीं एक दूजे नूं अपनी सरकार बचाउण वास्ते, अपनी पोजीशन बचाउण वास्ते, मैं वही बेनती करना है कि आ किसानां दी लड़ाई नूं आ चाहुंदे है कि पोलिटिकल नेचर दित्ती जाए, तो फिर असीं कहांगे आ पोलिटिकल लड़ाई है। आ पोलिटिकल लड़ाई नहीं है। मैं क्लीयर करना चाहना है, पोलिटिकल लड़ाई नहीं है, किसानां दी लड़ाई है। तो मैं पोलिटिकल जथेबंदियों नूं बेनती करना चाहना है, बीजेपी की सेंटर की सरकार च ट्रैप च नहीं फसना चाहिए। आ ट्रैप कोशिश है कि सेंटर की सरकार बनाना चाहती है कि पोलिटिकल लड़ाई है, पर उस विच आप सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के इंश्योर करना चाहिए कि यह लड़ाई किसानों की लड़ाई, किसान लड़ रहे हैं, जे आप सारे उन्होंने मगर सहयोग दे रहे हैं, पर लड़ाई किसानों की है। सारे इरिस्पैक्टिव, ना किसी धर्म की लड़ाई है, ना किसी जाति की लड़ाई है, ना किसी सूबे की लड़ाई है। आ देश की किसानों की लड़ाई है, देश की किसानों की जिहड़ी फ्यूचर की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है। तो अज जे देश अज जे इंडस्ट्री नूं बचाउणा, इंडस्ट्री तां बच सकती है जे किसान बचे। तो इस करके सेंटर सरकार नूं समझ लेना चाहिए कि जिहड़ी जिद फड़ी पई है कि असीं जो कहता करना ही है, पिछे नहीं हटना, वो जिद तो पिछे होना चाहिए। मैं एक एक इशू की गल नहीं कर रहा। किसान इन्ना अनपढ़ नहीं है कि उन्हें पता नहीं कि की कानून है तो की नहीं है। एक बंदे नूं तुसीं भ्रम फैला सकते हो, दो बंदे का भ्रम फैला सकते हो, तुसीं लखां किसानां दा भ्रम तो नहीं फैला सकते। सारे देश के किसान इक्को ही आवाज च बोल रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब सारे ने पढ़िया, सारे नूं पता है। तुसीं एक दो बंदे नूं तो कर सकते, सारी 500 देश दियां किसान ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म के थले इकट्ठी हो गई। जे देश ते दुनिया के यूएनओ वाले ने भी वर्ल्ड अपना उन्होंने अपना क्या है, देश के दुनिया के कोने कोने तो लोगों की आवाज़ आ रही है। सो ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, आ फैक्ट है। मैं कहना चाहना सेंटर की सरकार भ्रम ना फैलाए कि एंटी नेशनल फाइट बन गई है। ये भ्रम ना फैलाए कि ये एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की है, या एक पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई है, या एक किसी धर्म की लड़ाई है।
आप भ्रम सेंटर सरकार बनाना चाहती है, वो किसी हाल च नहीं होने देंगे। मैं वही बेनती करना चाहना है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बड़ी मुश्किल नाल पंजाबियों ने अमन शांति पंजाब च आंदी है। श्रोमणी अकाली दल ते खास करके सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की इक्को ही नीति रही है कि पंजाब तां तरक्की करूगा जे पंजाब विच अमन शांति ते भाईचारक सांझ रहूगी। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल 5 वार मुख्य मंत्री रहे ते अपने सियासी जीवन च उन्हां दा इक्को एक निशाना रहा कि पंजाब विच भाईचारक सांझ अमन शांति रहे ते उन्होंने सारा कुछ कुर्बान कर दिता अपनी लाइफ का पंजाब विच अमन शांति वास्ते ते भाईचारक सांझ वास्ते। ते श्रोमणी अकाली दल हुण बड़ा क्लीयर है, स्पष्ट है कि किसी हालत विच पंजाब की अमन शांति ते भाईचारक सांझ नहीं असी टुटन देवांगे। सो सानू कुछ भी कुर्बानी करनी चाहे, पंजाब की अमन शांति ते भाईचारक सांझ किसी हाल च नहीं टुटूगा। असी वचन दिंदे हां पंजाबियों नूं। तो इस करके असी बीजेपी की सेंटर सरकार नूं चेतावनी देना चाहुंदे हां कि वो ना कोशिश करन कि इस एजिटेशन नूं कम्यूनल एंगल देण दी, वो ना कोशिश करन कि इस एजिटेशन नूं रूरल वर्सेस अर्बन बनाउण दी या एक कम्यूनिटी वर्सेस दूजी कम्यूनिटी बनाउण दी। जे कोशिश कर रहे हैं तो सेंटर सरकार कर रही है पंजाब की अमन शांति भंग करन नूं, तो असी चेतावनी देने हैं कि असी पंजाबी किते बर्दाश्त नहीं करनगे। मैं एक बेनती करना चाहना, साडी पार्टी शुरू तो बड़ी क्लीयर है। श्रोमणी अकाली दल का जिवें 14 तरीक नूं 100 साल पूरे हो रहे हैं, किसानां दी सब तो वड्डी जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल है। जे दुनिया हिंदुस्तान में जे ना लिता जाए किसानां दे लीडर का, सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम आउंदा है। सारे किसान पूरे देश विच सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की किसानी प्रति सोच नूं जानते हैं। तो जदों सरकार अकाली दल की बनती है तो किसानी नूं ही पहल दे के जिन्ने भी फैसले किए गए हैं जो देश किते लागू नहीं है, कल्ले पंजाब च जिवें मुफ्त बिजली तो लैके फोकल पॉइंट तो लैके ते होर जिन्नियां सहूलतां दित्तियां किसानी नूं सारियां सरदार प्रकाश सिंह बादल ने दित्तियां। सो जिहड़ी साडी सोच है उवें ही जदों असीं क्लीयर है, जदों काले कानून बने, जदों सानूं पता लग गया कि इन्हां ने वापस नहीं लैणे या जो चेंजेस चाहुंदे सी वो नहीं करनियां, ते साडी जिहड़े मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सब तो पहले इस्तीफा दिता। असी फिर अलायंस तोड़ी, फिर सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म भूषण भी वापस किया। आ सारे कदम कोई असी कोई आसान वाली गल नहीं करते, साडा फर्ज है। आ लड़ाई, इस लड़ाई वास्ते सानू कुछ भी संघर्ष में हिस्सा पाना पे, सरदार प्रकाश सिंह बादल साडी पार्टी ने क्लीयर किया है क्योंकि साडी जथेबंदी किसानों की है। सी मैं आप क्लीयर है कि अपन पथराव वाली नीति नहीं चाहिए, अमन शांति पीसफुल सारा चीज रहना चाहिए। वो जो एलिमेंट है ਜਿਹੜੇ इस मूवमेंट ਨੂੰ या सारिया मूवमेंट ਨੂੰ खराब करना चाहते हैं वो जान के है जी पथराव वाली गल करते हैं। असी किसी साडा मूवमेंट पीसफुल है, शांतिपूर्व है तो शांतिपूर्व भी रहनी चाहिए है। ਜਿਹੜੇ लोग आ मूवमेंट ਨੂੰ खराब करना चाहते हैं तो मूवमेंट की सक्सैस ਨੂੰ रोकना चाहते हैं, वो लोगों तो अपन बचना चाहिए है तो उन्होंने अपन आइडेंटिफाई करना चाहिए। हल बड़ा सौखा है, नहीं हल बड़ा सौखा है। किसान नहीं चाहते कानून तो तुसी क्यों बना रहे हो? देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नूं बनाया जाता है फैसले लैण वास्ते जो लोगों के भले वास्ते हो। जे लोग नहीं चाहते किसान, मैनू एक जथेबंदी दस दिओ पूरे हिंदुस्तान जिन्हें किसान जथेबंदी जिन्हें सपोर्ट किया होया इस कानून, एक जे एक भी जथेबंदी नहीं है तो फिर आपां क्यों? रिफॉर्म का मतलब नहीं है कि तुसी रिफॉर्म के नां ते तुसी गला वड्ढन लग जाओ लोगों का। रिफॉर्म के लफ्ज नूं मिसयूज नहीं करना चाहिए सेंटर की सरकार नूं। किसान फैसला करने किवें संघर्ष नूं अगे लेके जाना, वो किसानां दे किसान बह के फैसला करनगे। पर मैं एक होर करना चाहना कि जी सेंटर सरकार का जिहड़ा हुण जिहड़ा मैं सिचुएशन देख रहा फैडरल सैटअप नूं जिहड़ा फैडरल नेचर अपनी देश की उन्होंने भी नुकसान करने ते लगना शुरू हो गया। अपनी जिहड़ी प्रिंसिपल स्ट्रेंथ सी देश की कि स्टेटां दे मोर अधिकार ते ज़्यादा पावर, हुण जिहड़े पॉलिसियां आ रही सेंटर सरकार दियां वो बेसिकली वो आ रही जिहड़ियां सेंट्रल सरकार नूं सारियां पावर अपने कोले ले जा रही हैं। भावें GST एक्ट होए, भावें वन नेशन वन कार्ड होए, हर चीज़ है वन नेशन वन थिंग, वन नेशन वन थिंग, सारा कुछ ही वन नेशन मीनस सारा कुछ ही अपने कंट्रोल च।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਟੇਟਾਂ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ।